So, Assalamu alaikum, dear students. Now we are going to discuss about experiment number two, and this experiment is about how to analyze normal inorganic constituents that are present in your urine sample. So let's see how we will do it. So for this purpose, yeah, you will be provided a a sheet like this. So the objective of this experiment, that is experiment number 2, is the to analyze the normal organic constituents of urine sample. मीन्स हमें इस एक्सपेरिमेंट में जो नॉर्मल हमारी यूरिन में कॉन्स्टिट्यूंट्स होते हैं, जो कि मैंने लेक्चर नंबर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में हमने डिस्कस किए हैं। इस एक्सपेरिमेंट की इस टॉपिक की थ्योरी में हमने डिस्कस किए हैं। वो कॉन्स्टिट्यूट हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में। तो व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूंट्स, नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द यूरिन? दीज आर द वाटर, these are the keratin, these are the uric acid, or or these are some organic or inorganic ion. So what are the requirement? For the requirement, we will be having chemicals that we will be discussing here, what chemicals we will be having for this experiment, and we will be needing glasswares. So for this purpose we have to utilize different tests. So the first test is the uh, जेफ टेस्ट फॉर कैराटिनिन। ठीक है, तो कैराटिनिन नॉर्मली हमारी यूरिन में प्रेजेंट होता है। और इन सारे जो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंट्स, इनकी हम लिमिट जो है नॉर्मल रेंज, वो हम अपने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। काइंडली मस्ट सी माय एक्सपेरिमेंट नंबर 1 वीडियो, यूट्यूब वीडियो, फॉर दी टू टेक द नॉर्मल रेंज ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूंट्स। तो हम जो डिफरेंट टेस्ट यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे, जो पहला टेस्ट है वो जेफ टेस्ट है। यह हम क्रेटिनिन के लिए टू एनालाइज दी नॉर्मल कैराटिनिन लेवल इन द यूरिन, ये वाला टेस्ट यूज़ करेंगे। और these tests are we are using for the quantitative analysis. Okay, for the quantitative analysis of keratin, uric acid and hypouric acid and urea in the urine. तो आप लोग को ये बात याद रखनी है कि हम क्या करें, क्वांटिटेटिव टेस्ट करें। दीज आर दी क्वांटिटेटिव टेस्ट दैट वी विल बी डूइंग। तो फर्स्ट टेस्ट जो है वो जेफ टेस्ट है फॉर केराटिनिन के लिए। इसमें हम क्या करेंगे, जो केमिकल वो यूज़ करेंगे हम, वो है NaOH। एंड यहाँ में सारे केमिकल्स जो हम यूज़ करेंगे वो मैं रेड कलर में या किसी भी कलर में हाईलाइट करते जाऊँगी। NaOH और पिक्रिक एसिड। ठीक है, ये दीज आर दी केमिकल्स। आप लोग ये केमिकल्स यहाँ से देख के जब आपको ये शीट प्रोवाइड की जाएगी तो आप इस जगह पर ये केमिकल्स सारे लिख लेंगे जो कि हम इन टेस्ट में यूज़ करेंगे फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और इस टेस्ट को किस तरह हमें परफॉर्म करना है कि हमें लेना है, वी शुड हैव टू टेक 5 ml ऑफ यूरिन सैंपल, सही, in a test tube. Then we will be adding 13 ml of 5% NaOH, and that we will be adding then 1 to 2 ml of saturated picric acid solution. ठीक है, so ये this is the first test. And then we observe what we are seeing um, uh, in the urine, what changes we are seeing in the urine. And then the normal level we have discussed in the first experiment. So we will whatever observation we will be getting after this experiment, we will correlate these observation with the one experiment number 1, जिसमें हमने लिमिट्स बता दी हैं पहले से कि कैराटिनिन की कितनी लिमिट होती है नॉर्मल यूरिन में। ठीक है,
तो देन हम ऑब्जर्व करेंगे और हम रिजल्ट लिखेंगे यहाँ कि आइदर दी वॉट एवर दी वैल्यू whatever the amount of the creatinine then that we find out in the urine sample is that normal or not. And the second test we will perform for identification or determining or analyzing the uric acid in the urine. इसके लिए हमें लेना है 5 ml urine sample in a test tube. Then we will be adding few drops of KOH, potassium hydroxide, and then we will be adding few 2 ml of ferric chloride. So I am highlighting these chemical with the red color. So and after that we will be mix these liquid together, and then we see what we are observing, and then correspondingly we write the result here. Then the third test is we will be performing for the identification of uric acid in the urine sample. So for this purpose we will be having 2 ml of Phalanx solution A and B plus 2 ml of urine sample plus few drops of NaOH, and then we will be boil it. So all these chemical would be adding in a test tube, and then we have to use the heater means the burner to heat these all the solution. And then what will be the observation we will be writing here, and then we will be write here the result, and we will correspond the means matches our result with the normal level that we have discussed in the first experiment. And then test number 4 is we will be using test number 4 for the determination of the urea in the urine. So for this purpose we will be having 5 ml of urine sample, 1 ml of sodium hydroxide and 1 ml of iodine water, and then we will be boiling it. So what will be the observation we would write here, and then we will be writing here the results. So then finally this is the means conclusory result. Here we will be writing here that after the first I will color it. So in the end these are the result of individual test, okay, for keratin, for uric acid, for hypouric acid and यूरिया. ठीक है, एंड फाइनली हम यहाँ पर सारे रिजल्ट्स लिखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, टू एनालाइज द नॉर्मल ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ यूरिन सैंपल. सो यहाँ हम फाइनली रिजल्ट लिखेंगे कि हमने जो ये सारे कॉन्स्टिट्यूंट थे ये नॉर्मली यूरिन में प्रेजेंट थे विद इन दियर नॉर्मल रेंज और नॉट. ठीक है, देन भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे what we will be discussing. We will be discussing if we will be finding any constituent that is will not be present in normal range. तो जो normal range में नहीं होगा constituent present हुआ हुआ, ठीक है, वो क्यों present नहीं है वो हम यहाँ discuss करेंगे, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं. If I can open for you here in फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर सारी रेंज पढ़ चुके हैं. ये सारी रेंज जिस हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, ये देखें कैराटिनिन. ठीक है, ये कैराटिनिन कितना होना चाहिए, 4.8 से 19 मिली मोल पर डे होना चाहिए. और अगर ये इस रेंज से कम या ज़्यादा है इट इज़ द इंडिकेशन ऑफ डिजीजेस. एंड व्हाट डिजीजेस, रीनल डिसफंक्शन, लीवर डिसफंक्शन. तो ये हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में से ये जो नॉर्मल रेंज है इससे कॉरिस्पॉन्ड करेंगे, अपने रिजल्ट को मैच करेंगे अपने इधर के रिजल्ट को. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने कैरेटिन के लिए ये टेस्ट परफॉर्म किया था, इस प्रोसीजर से परफॉर्म किया था, और जो भी हमारे पास रेंज आएगी, ठीक है, ऑब्जर्वेशन आएगी, वो हम इसको इससे कोरिलेट करेंगे. कहाँ गया कैरेटिनिन, ठीक है, इससे हम कोरिलेट करेंगे. अगर हमारी नॉर्मली उसी रेंज में प्रेजेंट होगा, ठीक है, कैरेटिनिन, या नहीं होगा हम यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जर्वेशन में, और रिजल्ट्स में हम लिखेंगे क्या कि जो रेंज हमारी आएगी वो यहाँ लिखेंगे, और रिजल्ट में हम लिखेंगे कि ये प्रेजेंट था या नहीं था, मीन्स नॉर्मल था कि नहीं था.
और यहाँ पर ये हमारे कॉन्क्लूटरी रिजल्ट है कि इफ़ द यूरिन इज़ नॉर्मल और नॉट नॉर्मल ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज मीन्स कॉन्स्टिट्यूंट दैट आर प्रेजेंट आइदर और नॉट प्रेजेंट इन द यूरिन सैंपल। और आखिर में हम ये डिस्कस करेंगे, फॉर एग्जांपल कैरेटिनिन की जो नॉर्मल लिमिट थी वो ये थी 4 to 8, 4.8 to 19 मिलीमोल पर डे। अगर तो ये नॉर्मल है, ठीक है, तो नो डिजीज सही। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इफ़ दिस इफ़ आवर सैम्पल विल बी मीन्स फॉलिंग इन द नॉर्मल रेंज, तो हम यहाँ लिखेंगे कि हमें जो इतनी रेंज की मिली है कैरेटीन और ये सारे कॉन्स्टिट्यूंट्स, तो इट मीन्स जो यूरिन सैंपल जो है वो नॉर्मल है, उसमें हर कॉन्स्टिट्यूंट नॉर्मल रेंज में है। और अगर वो नॉर्मल नहीं है तो हम लिखेंगे ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है। और क्यों नॉर्मल नहीं है? बिकॉज देयर मे बी प्रेजेंस ऑफ एनी डिजीज, फॉर एग्जाम्पल लीवर डिसफंक्शन और रीनल डिसफंक्शन लाइक दैट। तो इस तरह हम यहाँ पर इसको डिस्कस कर लेंगे, सही है। सो दिस वॉज द होल अबाउट आवर होल एक्सपेरिमेंट नंबर 1। तो आपको यहाँ से ये केमिकल जितने भी यहाँ यूज़ हुए हैं यहाँ लिख लेने हैं। और ग्लास वियर में क्या यूज़ हुआ है? टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब यहाँ पर लिख लेनी है। और दूसरे जो ग्लास वियर आप यूज़ करेंगे इन दी लैब योर लेबॉर्ट्री ड्यूरिंग दी एक्सपेरिमेंट, तो सारे ग्लास वियर यहाँ लिख लेंगे। और रिजल्ट और डिस्कशन हमने कर लिया है। सो थैंक यू वेरी मच, दिस वॉज माई experiment number 2, and then we will be in the next video we will be discussing about experiment number 3.